Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates, aspirants. Hope all of you are fine and in high spirits. As I told you in my previous journey of CSS, that I am going to start a series of interviews that will help the candidates preparing for CSS and PMS. Today, I am going to interview such a nice person, such a nice personality, the person from Gilgit-Baltistan, from the rural area of Skardu. Although he faced so many difficulties, but he managed to pass the CSS. He did not pass the CSS in the first attempt. He did not pass the CSS in the second attempt. Although he failed in the two attempts, but he never lost stamina. So the person who is sitting in front of you is the CSP Nazir Ali from 47th Common, who passed the CSS in 2018. Sir, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So, sir, kindly tell us that what's your academic background? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, I am very grateful to you Thank you. for giving me opportunity to share my views pertaining to CSS preparation through your channel. Thank you. As far as my academic background is concerned, I started my early education in a small school named Uswa Public School Yultar, which is situated in a small village named Yultar, Skardu. The school had very meager resources. The school was very deficient in resources like rooms. The school is also beside the cold desert in Skardu. Cold desert. I still remember that we used to take classes on the hot sand because we had no enough classes. Oh. Then in 2003, I took admission in a college named Uswa Cadet College. No, it is Uswa College. College. In 2003, it used to be called Uswa Cadet College, Islamabad. I took admission in that particular college. I spent my five important years of my academic career in that college, from class 7 to class FSC intermediate. Then after passing intermediate, I took admission in Dawood UT Karachi. Then I completed Bachelor of Industrial Engineering and Management from that university. Then I appeared in the CSS, and now I am here as CSP Nazir Ali. That's the brief introduction regarding academic background. That's very good. That's very great. Okay. So, you are from the, as you told me that you were from the engineering background. So, why didn't you go for the engineering? Why you went for the CSS? Okay, this question is asked by many people, and I often tell that engineering is a good field. If I speak frankly, I was not well prepared while I was getting admission in that university. I did not go through proper career counseling. Oh. I did not know about the pros and cons of engineering. I didn't even know about my aptitude. In the final year of my engineering, I realized that I was not fit for engineer, though I was among the good students in my university. But I realized that my passion is not in agreement with the profession or degree which I was going to have. That's why I realized that I should quit that profession or engineering. Then one of my relatives suggested me appearing in the CSS exams. Then I started getting information vis-a-vis CSS on the information and the different aspects regarding CSS, and I also met different senior CSS officers that motivated me a lot. MashaAllah, so what was your motivation behind CSS? Who motivated you for CSS? In 2 or 3 sentences, if I want to give
the answer to your question, then I would say, first of all, the job security attached with the profession of civil services, first, and the second is the honor and respect, which is attached with the CSS officers. Yes. These two particular points motivated me a lot to become a CSP officer. You're right. Okay. Because CSS itself means Central Superior Services. Okay. So you are part of that service. How you started CSS? Okay. Apart from the conventional ways that people from the beginning are clear about their career, yes, I am a bit exceptional. Okay, I didn't know about the CSS when I was reading in class metric. I didn't know about the CSS even I was in FSC. Then I took admission in university. At that time also I didn't know about CSS. I started gathering information regarding CSS when I was having my last semester. Okay, because at that particular point of my career, I had realized that yes, I am not fit for that particular field. Oh. Okay, then I Googled it about CSS. I listened to different senior officers on YouTube. Then I started knowing. No, I should prepare for the CSS exams. So if you ask me in that way, then when did you start preparing CSS exam? Then my answer would be from 2014-15. Okay. Even though you made your mind in 2015, yes, लेकिन उसमें ये भी था कि आपने अटेम्प्ट भी दिए. ऐसा नहीं कि आप 2018 में अपीयर हुए, 18 से आप पहले 2 अटेम्प्ट में भी अपीयर हुए, और विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आपका टाइम मैनेजमेंट क्या थी, आपकी डेली रूटीन क्या थी, आप कितना टाइम कितना सब्जेक्ट्स को दिया करते थे, थोड़ा सा ये मैं हमारे व्यूअर्स को बताएं क्योंकि थोड़ा सा उनको आइडिया हो डेली रूटीन का. जी. तो सबसे पहले मैं आपको रूटीन के हवाले से बताता चलूँ. एक आइडियल रूटीन एक CSS एस्पायरेंट का होना चाहिए कि वो पूरा अपना टाइम CSS की प्रिपरेशन को दे दें. लेकिन मेरा अपने कुछ कंपल्जन्स थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं बगैर जॉब के मैं CSS की तैयारी करूं. तो सबसे पहले मेरी कोशिश थी, जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ तो कोई जॉब मेरे हाथ में हो, ताकि मुझे कम से कम सोर्स ऑफ इनकम हो, ताकि उससे मैं अपनी किताबें ख़रीदूँ, जो हॉस्टल के फीस है, और वहाँ पे कराची में जब रहता है तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा है, तो वो मैं अब्बू पे वो बर्डन नहीं डालना चाहता था. ठीक है. तो सबसे पहले मेरी कोशिश थी एक छोटी जॉब हो. तो मेरे दोस्तों ने मुझे सजेशन दे दिया कि आप टीचिंग को परस्यू करें. तो मैंने 2-3 जगहों पे मैंने ट्राई किया, वहाँ पे भी मुझे रिजेक्शन का सामना हुआ. देन एट द एंड ऑफ द टाइम किसी स्कूल ने मुझे हायर कर दिया. वहाँ पे मैंने 3 साल वहाँ पे मैंने पढ़ाया. अच्छा. तो मेरा रूटीन तकरीबन सुबह 6 बजे से रूटीन शुरू होता था. मैं जाता था, फिर वहाँ स्कूल पहुँच के वहाँ पे मेरी ड्यूटी थी, वहाँ पे पढ़ाता था. फिर वापस आते आते तकरीबन 2:30 बज जाता था. फिर खाना खाया, फिर रेस्ट टाइम. फिर मेरा जो मेजर जो पार्ट में अपनी स्टडी को देता था वो नाइट टाइम था, रात को मैं ज़्यादा पढ़ता था. इसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं था. अच्छा. जब मैं कराची में था. अच्छा. तो मैं स्टूडेंट्स को ये भी मैं बताता चलूँ, ऐसा नहीं है कि आप बगैर जॉब के अगर आप ऐसे तैयारी करें, जॉब के साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं. अच्छा, जॉब के साथ भी कर ठीक है, उसका फ़ायदा भी है. अच्छा. आपके पास जॉब भी हो तो आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा. वो भी एक तरह से आपकी CSS की तैयारी का हिस्सा है. वरना आप ऐसे एक कमरे पे बैठ के आप तैयारी शुरू करते रहेंगे, मे बी यू गेट फेड अप एंड यू गेट बोर्ड. आप मे भी नर्वस हो सकता है कि आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है. एक सोशल लाइफ के लिए एक हेल्दी रूटीन भी है कि आप जॉब भी करें. तो मैं रात को ज़्यादा पढ़ता था. तकरीबन रात के 2 बजे मैं सोता था, क्योंकि 2 बजे अगर ऐसा रूटीन ना हो तो फिर मेरे को टाइम ही नहीं बचता. ठीक है. तो दैट वाज वेरी हेक्टिक रूटीन. ओके. सो देखें कि कैंडिडेट्स जो CSS की तैयारी करते हैं तो उनको इंग्लिश का बड़ा सामना होता है, डिफ़िकल्टी फेस करते हैं. कहते हैं कि ऐसे और प्रेसिस हरक्यूलियन टास्क फॉर देम. तो आपने ऐसे प्रेसिस की कैसे तैयारी की आपने?
सबसे पहले जो मेरी स्ट्रेंथ ये थी कि आई वॉज गुड एट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश। तो मैं शुरू से स्टूडेंट लाइफ में मैं अपनी क्लास में टॉपर था, अंग्रेज़ी में मैं टॉपर था। माशाल्लाह। मेरी अंग्रेज़ी शुरू से अच्छी थी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ज़बरदस्त। मैं लिखता था, ग्रामर के बेसिक्स है, जैसे नरेशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब तक आपकी प्रेसी एंड कंपोजिशन वाला पेपर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यानी आपकी इंग्लिश ग्रामर अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कभी इंग्लिश ऐसे पास नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो क्योंकि इसकी मतलब वजह grammar है, must है। क्योंकि इसकी वजह है, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे आप लिखते हैं तो एक टॉपिक पे आपने 10 से 15 पेजेस या 20 पेजेस आपने लिखना है। तो सबसे पहला जो एग्जामिनर देखते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो आप कम से कम बेसिक इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें। तो मैं इंग्लिश की तैयारी मैंने कैसे की, तो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे पास था कि मुझे इंग्लिश ग्रामर के लिए मज़ीद तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में मैंने इतनी तैयारी की हुई थी कि मुझे मज़ीद जाके एकेडमी में जाके कि या किसी टीचर के पास जाके रिक्वेस्ट करे कि मुझे ये समझाए, नरेशन समझाए, टेंसेस समझाए। अच्छा। ठीक है। तो बेसिक आप इंग्लिश सीखने के लिए मुझे और मज़ीद मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो फिर मुझे दूसरा स्टेप ये था कि आपने अंग्रेज़ी सीखी। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड एट इंग्लिश बट दे कैन नॉट राइट। अच्छा। उसकी वजह ये है भी होता है कि उनकी ज़बान तो ठीक होती है, किसी ज़बान पे महारत होना अलग है, लेकिन अपने थॉट्स को पेपर पे उतारना एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अलग एक मेथड है। जी जी। तो इंग्लिश की सीएसएस में इंग्लिश की तैयारी ही इसी में ही की जाती अच्छा, है इसी कि जो में। मेंटर्स है इसी पे फोकस करते हैं सही, ज़्यादातर। यानी आप उर्दू में लिखे या इंग्लिश में लिखे, ठीक है, जिस ज़बान में आप सोच रहे हैं, जब आप पेपर पे उतारते हैं अपने थॉट प्रोसेस को, उसमें ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस, कोहेरेंस वो बरकरार रखें। अच्छा। ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं मैट्रिक में उस वक्त सीएसएस की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन मेरा हैबिट था, मैं जो उस वक्त 10 नंबर का या 20 नंबर का ऐसे टीचर्स हमें होम टास्क या असाइनमेंट देते थे, मैं ख़ुद लिखता था। उस वक्त आई यूज्ड टू राइट माई सेल्फ। मेरी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी, कभी 10 में 3 नंबर आता था, कभी 20 में से 4 नंबर हमारे टीचर देते थे। तो बाकी जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर कॉपी करते थे, लिख के दे गेट देयर essays or paragraph checked and they used to get good marks and they used to be very happy। मैं ऐसा नहीं करता था, मैं लिखता था and I used to get those paragraphs checked और मुझे मेरे मार्क्स बहुत ही कम होते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से मेरी मिस्टेक्स ख़त्म हो गई। अब यहाँ कराची में मैंने सबसे पहले क्या किया कि मुझे पता चला कि इंग्लिश ग्रामर में मेरे कोई मैं वहाँ पे मैं वीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आई मैनेज टू स्कोर 72 आउट ऑफ 100 इन प्रेसी एंड कंपोजिशन। ज़बरदस्त। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि एटलीस्ट ग्रामर मेरी वीक नहीं है, इंग्लिश मेरी वीक नहीं है। मेरा जो वीक पॉइंट था ऐसे, यानी मेरे पास मवाद नहीं थे, कंटेंट नहीं था। सबसे पहले आपकी इंग्लिश ठीक होने के बाद दूसरा पॉइंट क्या है, आपके पास नॉलेज हो, रेलेवेंट नॉलेज हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक सही सही। इसके बाद फिर अपने ग्रामेटिकल जो स्किल्स है उसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी टॉपिक पे अपने थॉट प्रोसेस को पेपर पे उतारते हैं विदाउट मेकिंग बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस, कोहेरेंस इनको बरकरार रखते हुए आप लिखते हैं। इट मीन्स यू आर ए गुड एसेइस्ट, एज ए गुड राइटर। वेरी गुड, माशाल्लाह। सर आपके ऑप्शनल्स क्या थे? जी मेरे ऑप्शनल, क्योंकि मैंने तीसरे अटेम्प्ट में पास किया है, तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साइकोलॉजी भी मेरे ऑप्शनल थे। उस वक्त तो 2 नंबर के साइकोलॉजी का पेपर होता था। साइकोलॉजी के पार्ट 1 पार्ट 2 साइकोलॉजी का हुआ करता था। उसके बाद तो इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू से आखिर तक मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा। इंटरनेशनल रिलेशन भी शुरू से आखिर तक मैंने उसको चेंज नहीं किया, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा। सिर्फ मैंने साइकोलॉजी को चेंज किया, क्योंकि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ये जब सिलेबस चेंज हुआ था 2016 में, इनको एक ही ग्रुप में रखा था। एक ही ग्रुप, तो ठीक है, इसलिए मैंने साइकोलॉजी को मैंने ओमिट करके उसकी जगह मैंने सोशियोलॉजी में रखा। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। IR जो कि बाद में 200 नंबर IR पार्ट 1 पार्ट 2। इंडो पाक हिस्ट्री जो कि अक्सर सजेस्ट करते हैं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं, ये ना रखे, लेंथी है, तो मेरा ये भी सब्जेक्ट था। इंडो पाक हिस्ट्री भी। जी। तो सर आपका कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर था? जी, इंटरनेशनल रिलेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा अच्छा स्कोर था। बाकी सब्जेक्ट्स में मेरा एवरेज है 60+ या 55 के अबोव या 60+। बाकी सब्जेक्ट्स सर आपने माशाल्लाह से बात की कि IR और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो आईआर ऑप्ट करते हैं तो उनके स्कोर कम आता है, इवन दो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहते हैं वो भी हिट हो रहा है। तो क्या रीज़न है? तो आप सजेस्ट करेंगे कि वाकई में कि वो वाकई में हिट होते हैं या प्रिपरेशन उनकी सही नहीं होती? ये भी किसी हद तक सही है, क्योंकि हाँ, जो रिपोर्ट्स हमारे पास है, जो रिकॉर्ड्स है, अच्छा। तो उसमें देखा गया है कि एक स्टूडेंट है, एक एस्पायरेंट है, उसका एक साल आईआर में 80% उसका स्कोर है, दूसरा अटेम्प्ट में ऐसे भी है कि इसी सब्जेक्ट में फेल भी हुआ है। अच्छा। तो ऐसा भी है, किसी हद तक ये भी सही है हिट हो। लेकिन इससे ज़्यादा जो अहम बात ये है कि अगर आप वो सब्जेक्ट्स रखें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो फिर मुमकिन है कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फिर ये आईआर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखते हैं कि फ्लक्चुएशंस है, यानी कुछ साल आप देखते हैं कि लोगों के एवरेज जो मार्क्स है 70 मार्क्स है, लेकिन कुछ साल आप देखते हैं जिनका हाईएस्ट है वो 70 है। अच्छा। जैसे आप 2017 में आप देखते हैं कि आईआर में जिसके हाईएस्ट है वो 112, 115, 112 के बीच था। अच्छा। लेकिन कुछ और किसी और आप उसमें देखते हैं कि साल उसमें रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, हिस्ट्री जाके चेक करते हैं, तो आप देखते हैं कि जिनके कम थे उन्होंने भी तकरीबन 55-60% स्कोर किया होता है। तो इसके बाद जो मेरा अहम पॉइंट, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, ख़ासकर ऑप्शनल पेपर्स का, क्योंकि ऑप्शनल पेपर्स में आपने पास होना नहीं होता है, आपने अच्छे मार्क्स हासिल करना होता है। वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है जिसमें यू बॉदर टू फेच द पासिंग मार्क्स इन दी कंपलसरी सब्जेक्ट्स, बट व्हेन कम टू दी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पास करने है, आपने अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में अक्सर मार्क्स कम आते हैं ताकि यहाँ से फिर वो कवर हो सके। तो स्टूडेंट्स के आईआर में मार्क्स कम आते हैं, एक तो ये कि या तो उन्होंने तैयारी नहीं की है या तैयारी की है इसके बावजूद कम आते हैं, तो उनकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि वो एसए या करंट अफेयर और आईआर के पेपर में फ़र्क नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस, ठीक है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा गया है और इत्तेफाकन वही क्वेश्चन इंग्लिश एसे में पूछा गया है। अच्छा। तो स्टूडेंट्स फ़र्क नहीं करते हैं कि ये क्वेश्चन जब मैं एसे पेपर में अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ तो उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, अच्छा, जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझे कैसे करना चाहिए। स्ट्रेटजी डिफरेंट। तो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन इन आईआर और इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द लाइन ऑफ सब पर्टिकुलर थ्योरीज। ठीक है, लाइक आप आईआर में किसी टॉपिक पे आप एनालाइज करते हैं तो एग्जामिनर अप्रिशिएट करते हैं कि वो आप किसी थ्योरी को लेके उसकी रोशनी में बात करें। इसलिए आप गवर्नेंस को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में आप गवर्नेंस को अटेम्प्ट करते हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो वो जो एग्जामिनर है वो अप्रिशिएट करते हैं कि वो गवर्नेंस के थ्योरीज है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के थ्योरीज है, उनकी रोशनी में बात करें। लेकिन जब आप ऐसे में गवर्नेंस के हवाले से पूछा है या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उस पर 3000 वर्ड्स पे आपने ऐसे लिखना है, तो वो जो चेक करने वाला वो स्पेशलिस्ट नहीं, वो जर्नलिस्ट टीचर होते हैं, वो इंग्लिश में प्रोफेसर होते हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर होते हैं, कि दे डू नॉट अप्रिशिएट दैट यू यूज इकोनॉमिक जर्गन्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी बड़ी थ्योरीज का इस्तेमाल करें। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जर्नलाइज वे में बात करें, ठीक है, टू दी पॉइंट बात करें, ठीक है, तो वो उस तरह से अप्रिशिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली फ़र्क नहीं करते, इस वजह से फिर वो स्टूडेंट्स शौक हो जाते हैं कि वो जिस तरह उनका एक्सपेक्टेशन होता है उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनका रिजल्ट नहीं आता है, तो वो शौक हो जाता है। तो उसकी वजह ये है। जी सर, डू यू थिंक सब्जेक्ट सिलेक्शन मैटर्स? जी, द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स मैटर्स अ लॉट, क्योंकि मुझे ख़ुद पता है, क्योंकि मैंने तीसरा अटेम्प्ट में पास किया है, तो अभी मुझे पता चलता है कि मैंने वहाँ पे ये गलती की, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ये गलती, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये गलती की। तो स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स नॉर्मली ज़्यादा ये पूछते हैं कि सर ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो वो अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल छोड़कर ऐसे सब्जेक्ट्स का इंतखाब करता है जिनमें उनका इंटरेस्ट ज़ीरो है, या उनको खुद पता नहीं कि ये सब्जेक्ट मुझे अट्रैक्ट करता है या नहीं। अच्छा, ठीक है, तो मैं एडवाइस ये करता हूँ उनको कि आप देखें, सबसे पहले आपने आपसे क्वेश्चंस करें, व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स अट्रैक्ट यू, यानी किस तरह के टॉपिक्स, किस तरह के मौज़ूआत, किस तरह की किताबें पढ़कर आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, आपको अच्छा लगता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नावल पढ़ते होंगे, आप डाइजेस्ट पढ़ते होंगे, मुख्तलिफ तरह की किताबें पढ़ते होंगे, तो एक किताब के अंदर भी डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं,
कि कुछ टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं, कुछ टॉपिक्स आपको अच्छे नहीं लगते हैं। जो टॉपिक्स आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो फिर इसका मतलब है आपका पढ़ने का भी दिल नहीं करता। और जो आप ऐसे ही पढ़ते हैं तो वो जो आप इजीली रिटेन भी नहीं कर सकते अपनी मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो आप उन सब्जेक्ट्स को आप रखें ऑप्शनल अपनी कलेक्शन में, उन सब्जेक्ट्स को रखें जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, जिनको पढ़कर आप लुत्फानंदोज हो जाए। आप इस तरह से पढ़ें, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सीएसएस के लिए ना पढ़े, आप उसको पढ़ते हुए आप खुद एंटरटेन हो रहे हैं, यानी आप बोर नहीं हो रहे, ठीक है। जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़कर आप बोर हो जाए, इसका मतलब यह है कि ये सब्जेक्ट आपके एप्टीट्यूड के मुताबिक नहीं है, अच्छा एप्टीट्यूड के मुताबिक नहीं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि योर इंटरेस्ट, ठीक है। फिर जाहिर है कि आप ज़्यादा डिफरेंट मेंटर से आप जब बात करते हैं तो मेरा मशवरा है कि आपको 1 या 2 या मैक्सिमम 3 मेंटर्स जो सीरियस है उनसे जाके मशवरा लेना चाहिए। आप ज़्यादा मेंटर्स के पास जाते रहेंगे, आप मशवरा ही लेते रहेंगे, हर कोई आपको डिफरेंट मशवरा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन वो अपने उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी ने अलग तरीके से तैयारी की है, किसी ने अलग तरीके से तैयारी की है, किसी और सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, वहाँ पे उन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किया है, किसी ने उसको ऑप्ट नहीं किया है, वो आपको डिस्करेज करेगा। तो आपने अपना इंटरेस्ट देखना है, इसके बाद फिर थोड़ा सा आपने देखना है चलो स्कोरिंग ट्रेंड उसको भी देख ले, ठीक है, लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड से भी ज़्यादा, क्योंकि उसकी कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, लॉजिक तो आपका असल जो फोकस होना चाहिए आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जनरल स्टडीज़ रखते हैं, ठीक है, आप जनरल स्टडीज़ रखते हैं। जनरल स्टडीज़ तो ऐसे सब्जेक्ट है, आप अखबार पढ़ते ही बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो जनरल स्टडीज़ को कवर कर लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, फेमिनिज्म है, वुमेन इश्यूज़ है, ये तो अखबार के कॉलमिस्ट के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जी। अब ये पढ़ते आपका ऐसे ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है, बिल्कुल, नो डाउट, ठीक है नहीं। इसी तरह आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप रखते हैं, ठीक है, आप अखबार पढ़ते हैं, डेली टाइम्स पढ़ते हैं, डॉन न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, द इकोनॉमिस्ट पढ़ते हैं, डिप्लोमेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनमें आप बहुत सारे कॉलम्स ऐसे पढ़ते हैं जो कॉलम्स पढ़ते वो पूरी बुक की तैयारी आप, बल्कि बुक से ज़्यादा आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मैगजीन्स और अखबार आपको प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स है। लेकिन आप कोई ऐसा सब्जेक्ट रखता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर कहते हैं कि आपने इंडो पाक हिस्ट्री ये सब्जेक्ट रखा, हालांकि आपको अमेरिकन हिस्ट्री रखना चाहिए, तो मेरा आंसर ये होता था कि भाई एक तो अमेरिका को मैंने देखा ही नहीं है, मैं ज़िंदगी में अभी अमेरिका से मैं वाकिफ़ ही नहीं हूँ, अच्छा, ठीक है, और कम से कम जो पाकिस्तान के बारे में तो मैं जानूँ, जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ। फिर आप क्लास 5-6 से आप थोड़ी बहुत पढ़ते आए हैं कि इंडो पाक हिस्ट्री, तो इसलिए मैंने हालांकि अमेरिकन हिस्ट्री सिलेबस को अगर दोनों के जो सिलेबस को अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिकन हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत ही शॉर्ट है एज कम्पेयर टू इंडो पाक हिस्ट्री। लेकिन मेरा इंटरेस्ट अमेरिकन हिस्ट्री की तरफ नहीं था, तो इसलिए मैंने इंडो पाक हिस्ट्री को ऑप्ट किया। तो इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन में ओवरलैपिंग ये भी एक बेंचमार्क होता है कि आप एक सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हो रही है, उसके साथ किसी की तैयारी हो रही है, उसके साथ किसी और सब्जेक्ट की भी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह फिर प्लस योर इंटरेस्ट, देन योर स्ट्रेटेजी, ठीक है, योर स्मार्ट, योर स्टडी शुड बी स्मार्ट, स्ट्रेटेजी आल्सो मैटर्स। यस सर, व्हाट हैबिट्स मेक अस सीएसपी? जी, ये बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन आपने किया। तो मैं कहता हूँ सिर्फ सीएसएस के लिए नहीं, कोई भी बड़ा टारगेट अगर आपने रखा है या जो भी आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद हो उसको अचीव करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें सबसे पहली बात यू शुड बी कंसिस्टेंट। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल think of success. When you start thinking about success, then what happens? You start believing. यानी सबसे पहले आप कामयाबी के बारे में सोचे, पॉजिटिव माइंडेड, ठीक है। अगर आप मैदान में उतरते हैं तो फेल होने के लिए उतरते हैं तो फिर बहुत ही लीस्ट चांस है कि आप पास हो जाए, आप कामयाब हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो उसूल क्या है? थिंक ऑफ सक्सेस। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सक्सेस देन यू स्टार्ट बिलीविंग, ठीक है। जब आपको किसी चीज़ पे बिलीव होता है, ठीक है, देन यू विल स्टार्ट एक्टिंग। वेरी गुड, ठीक है। यानी पहले आप सोचते हैं, जी, ठीक है। यानी किसी भी कोई भी मकासद आपकी ज़िंदगी में हर किसी के अपने गोल्स है, उसको हासिल करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो मैं समझता हूँ, सबसे पहले यू शुड थिंक पॉजिटिवली। व्हेन यू थिंक पॉजिटिवली देन यू स्टार्ट बिलीविंग। व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन सक्सेस देन यू विल स्टार्ट एक्टिंग। वेरी गुड। एक्शन तो तीसरे नंबर पर है, ठीक है। नहीं, पहले आपने सोचा, जैसे पहले मैंने सोचा यार मैंने कभी ये नहीं सोचा यार मैं देहाती बंदा हूँ, मेरे पास रिसोर्स भी कम है, मैंने अपनी किताबों के पैसे भी खुद अरेंज करना है, ठीक है, एकेडमी में अफोर्ड नहीं कर सकता,
ठीक है नहीं, शहर में मैंने बसों में सफ़र करना है, कोई मेरे पास कार नहीं है, एयर कंडीशन रूम नहीं है, कराची 42 43 से अबोव सेंटीग्रेड उस टेम्परेचर में मैंने वहाँ पे रहना है, जॉब के साथ भी मैंने पढ़ना है, दोस्तों को भी टाइम देना है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा यार मैं आप किस तरह तैयारी करूँगा, मैं पास नहीं होऊंगा, लेकिन मैंने सोचा मैं पास हो जाऊँगा। जी जी ठीक है, फिर मैं अपने आप पे बिलीव करने लगा। जी। इसके बाद ये दोनों पॉइंट्स अचीव करने के बाद ये 2 पॉइंट्स आपको स्टिमुलेट करते हैं। बिल्कुल सही। आप पढ़े, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे जी, कि इट योर फिलोसफी अबाउट लाइफ मैटर्स अ लॉट। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ एनालॉजी, एक गाड़ी है, ठीक है, बहुत ही कीमती गाड़ी है, ठीक है, उसका ड्राइवर अगर ख़राब हो, बिल्कुल सही, ठीक है, वो तो एक्सीडेंट करेगा। बिल्कुल सही, ठीक है, आपकी लाइफ भी एक गाड़ी की तरह होती है। सही, ठीक है, आपकी लाइफ को चलाने वाला क्या है, उसके पीछे आपकी फिलोसफी है। ठीक है, आपके पीछे आपका नजरिया क्या है, लाइफ के हवाले से आपका नजरिया क्या है, आपकी फिलोसफी क्या है, दैट विल ड्राइव योर पर्सनैलिटी, दैट विल ड्राइव यू योरसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करें, उसको बेहतर करें, अच्छे लोगों की सोहबत में रहें। ठीक है, बुरे जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, सिंपली उनसे आप आर्गू ना करें। अच्छा, ठीक है, जस्टिफाई ना करें। ठीक है, आप ऐसे लोगों में के साथ रहें जो खुद कामयाब है। अच्छा। कामयाब लोग हमेशा आप कामयाबी की बात करते हैं, जबरदस्त। नाकाम लोग हमेशा नेगेटिविटीज की बात करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। क्या बात है सर, आपने जैसे कहा कि तीसरे अटेम्प्ट में पास हुए, तो आप जब तैयारी कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों के स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि आप 2 अटेम्प्ट कर चुके हो, तीसरा अटेम्प्ट हो सकता है आपसे पास ना हो, आप अपना पीयर प्रेशर आप फेस करते हो, जॉब प्रेशर फेस करते हो, मतलब डबल माइंडेड हो जाता है। तो आपने ये इस स्ट्रेस को कैसे आपने बर्दाश्त किया, कैसे आपने इनको साइड करके आपने अपना मिशन परसू किया? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया। ठीक है, तो लोग पूछते थे ज़्यादातर मुझे कि बस ये बंदा फेल उनको तो पता होता था कि ये बंदा फेल हो गया है, लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि मार्क्स कितने हैं। अच्छा, मार्क्स, अच्छा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि मैंने कहा यार मैं फेल हो गया हूँ और मार्क्स बहुत कम है। अच्छा। इससे भी उनको सुकून नहीं आता था। वो कहते थे भाई आपके आईडी कार्ड नंबर दे दे, ताकि उनको पता भी चले ना यार ये मार्कशीट में इसके बुरी तरह ये फेल हुआ, तो ताकि चेंज भी आ जाता है ना हमारी सोसाइटी में। ठीक है, सुकून मिलता है। तो मैंने दे दिया। अच्छा, आपने नंबर, अपने आईडी कार्ड का नंबर दे दिया। जो पूछते थे दे आर वेरी क्यूरियस। अच्छा, मैं यार बेचारों को क्यों तकलीफ दे दूं यार, दे आर सो क्यूरियस अबाउट माय पर्सनालिटी, माय लाइफ। अच्छा, उनको अपनी लाइफ से ज्यादा मेरी लाइफ की ज्यादा फिक्र होती थी। अच्छा, मैं उनको दे देता था एंड दे यूज्ड टू फील हैप्पी। तो मुझे अच्छा लगता है, चलो यार इन्होंने जाना है और दे आर हैप्पी, मैं उनको दे देता था। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा रिजल्ट आया था, आई वाज टेरिबल। माय रिजल्ट इन इंग्लिश एसे, पर्टिकुलरली इन इंग्लिश एसे was terrible, was horrible rather। क्यों horrible? बहुत ही कम मार्क्स। अच्छा, कम मार्क्स थे। बहुत ही कम मार्क्स। अच्छा। तो अगर मैंने शुरू में अभी क्या कहा, थिंक पॉजिटिवली। अगर मैं सिर्फ अपने ऐसे में जो कम मार्क्स को लेके मैं एनालाइज करता हूँ, शायद मैं आगे चल ही नहीं पाता। मैंने इंग्लिश प्रेसिंग कंपोजिशन को देखा। अच्छा। वहाँ पे मेरे 72 मार्क्स थे। इंग्लिश ऐसे में मेरा 10 मार्क्स से भी कम थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने देखा यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस रखा और इसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अपनी गलती आपने एक्सेप्ट किया। मैं बार बार एडवाइस करता हूँ, जब आप फेल हो जाए तो एक उसूल ये है कि अगर आपने कामयाब होना है, उस फेलियर से निकलना है, तो सबसे पहले एक्सेप्ट। आप ब्लेम गेम में ना चले, किसी और को दोषी ना ठहराएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। या पीएससी ने मेरे साथ ज्यादती की है, या मेरे पास ये चीज नहीं थी, मैंने सही किया था। नो, सबसे आप इस तरह ना जस्टिफाई ना करें गलती को एक्सेप्ट करें। इट मींस कि आपने एक कामयाबी की तरफ एक कदम आपने बढ़ाया है। तो सबसे पहले मैं आई डिड नॉट जस्टिफाई माय फेलियर। अच्छा, आई एक्सेप्ट इट। मैंने ये एज्यूम किया यार ये 10 मार्क्स से कम, ये 5-6 मार्क्स इन्होंने दिया है, तो ये भी मैं डिजर्व नहीं करता था। अच्छा। क्योंकि मैंने ऐसे को टाइम ही नहीं दिया था। अच्छा। मुझे इस ऐसे पेपर के जो डायनेमिक्स है तैयारी के, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए मुझे पता चला मेरे वीक पॉइंट्स कहाँ हैं। मैंने ऐसे की तैयारी की और 5 नंबर से मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ऐसे को पास किया। जबरदस्त। ठीक है, नहीं जबरदस्त इंप्रूवमेंट दी। मैंने ये नहीं देखा सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो गया। अच्छा। ठीक है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में फेल हुआ तो लोगों की जो थॉट है मेरे हवाले से, गाँव की, मैं क्योंकि गाँव का हूँ, गाँव के लोगों से मेरा ज़्यादातर रब्ता रहता था। तो कुछ लोग वाकई में देवर सिंसियर फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत रोल प्ले किया है कि मेरी कामयाबी। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे
कि उनकी परसेप्शन जाके मेरे घर जाके मेरे रिलेटिव्स के साथ भी, मेरे अब्बू के साथ, पेरेंट्स के साथ भी कहते थे यार कि ये ज़ाया कर रहा है, टाइम ज़ाया कर रहा है, ठीक है, कोई जॉब करनी चाहिए, कोई BPS 14 स्केल 16 स्केल की जॉब, ये भी ये अप्लाई ही नहीं कर रहा है, ये एज भी ओवर हो जाएगी, बाद में टाइम ज़ाया होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों का खेल है, यहाँ पे सिफारिश होती है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि सिफारिश होती है। जी, जो ऊपर जो एक लाइब्रेरी होती थी उसका नाम है म्यूनिसिपल लाइब्रेरी। वहाँ म्यूनिसिपल लाइब्रेरी और मेरे घर के बीच जो फासला है, मैं पैदल सफ़र करता था क्योंकि मेरे घर से वहाँ तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, कोई पब्लिक बसेस या पब्लिक गाड़ी नहीं चलती है। सही। तो मैं पैदल जाया करता था। तो पैदल 1 घंटे का सफ़र है। एक घंटे का सफ़र है। 1 घंटे का पैदल, 1 घंटे का आना और 1 घंटे का जाना। ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होती। 1 घंटे का जाना, 1 घंटे का आना। तो मैं 8 बजे, तकरीबन सुबह के 8 बजे वो लाइब्रेरी खुलती थी। तो मुझे अपने घर से 7 बजे निकलना पड़ता था। तो 7 बजे मैं जाता था और स्पीड पकड़ता था और ठीक 7:55 सुबह मैं वहाँ पहुँच जाता था और सबसे पहले उस लाइब्रेरी में मैं पहुँचता था। तो फिर अज़ान तक, शाम के अज़ान तक वो लाइब्रेरी खुली रहती थी, तकरीबन रात के 8 बजे तक। अच्छा। तो मैं फिर वापस आते आते बिल्कुल अंधेरा छा जाता था और घर आता था। तो ये दैट वाज वेरी थ्रिलिंग, बहुत ही स्ट्रगल है। आई एंजॉयड, यू एंजॉयड, या मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर मैं आपको बताता चलूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहाँ पे जब मैं तैयारी कर रहा था, तो बीच में GB कॉम्पिटिटिव टेस्ट, PMS हो जाएगा। वहाँ पे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव टेस्ट, जिस तरह के जो सिंध में, पंजाब में PMS होता है, तो वो आया। उसमें मैं उस टेस्ट में भी मैं फेल हो गया। अच्छा, उसमें भी आप फेल हो गए? जी। वहाँ पे जब वो टेस्ट आ गया था, लोग कह रहे थे तो आप इनका तो 100% अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये CSS की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अब प्लस पॉइंट है, ये तो हो जाएगा। अच्छा, जब मैं फेल हो गया कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस वक्त लोगों की जो परसेप्शन मेरे हवाले से इंतहाई नेगेटिव थी। अच्छा। अब फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, हमारे लोग फिर टैग लगाना वो एक तरह से परसीव करते हैं, फिर खुद से फिर कहना शुरू कर देते हैं कि यार इस बंदे ने ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया, तो उसे CSS कैसा होगा। तो मैं अक्सर मैसेज देता हूँ, हर टेस्ट उसके अपने डायनेमिक्स होता है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि किसी ने PMS पास नहीं किया तो फिर उससे CSS नहीं होगा। अच्छा। या किसी ने CSS क्वालिफाई किया तो वो PMS टॉप करेगा। सही। इस तरह की कोई लॉजिक नहीं है। हर टेस्ट उसके अपने डायनेमिक्स होते हैं, ठीक है, उसके अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो ठीक है, आपने तैयारी करनी है। फिर लक भी है, लक फैक्टर भी 5 to 5%। मैं तो कहता हूँ आपकी मेहनत के बाद फिर 5 से 10% वो लक फैक्टर। तो फिर 2018 का मैंने फॉर्म भर लिया। तो गिलगित बल्तिस्तान, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एक ही सेंटर है, वो भी गिलगित में है। अच्छा। यानी टेस्ट आपको पता है कि CSS का टेस्ट हर साल फरवरी में होता है। अब फरवरी में आप गिलगित बल्तिस्तान में आप जाए तो फिर खासकर कर दूँ मैं, तो बहुत ही सर्दी और बहुत ही ठंड, दिसंबर जनवरी में तो माइनस में और फ्रीजिंग पॉइंट होता है वहाँ पे। तो मैं गिलगित गया टेस्ट देने के लिए। तो एक और फिर डर था कि लोग कहने लगे यार उस सेंटर से आज तक किसी ने CSS पास नहीं किया। अच्छा, किसी ने पास नहीं किया। मुझे भी थोड़ी बहुत परेशानी होने लगी। फिर मैंने एक CSS ऑफिसर को मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। वो जो चेक करने वाला है उनको कोई पता नहीं होता ये स्कर्दू सेंटर से दिया है, अच्छा, या कराची सेंटर से दिया है या इस्लामाबाद से दिया है, उनको कोई पता नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया, अब तो मैंने भर लिया है, अब इस पे सोचना तो फजूल है जी। अब आप तैयारी पे फोकस करो और बिस्मिल्लाह करके टेस्ट दे दें। ठीक है, टेस्ट दे दिया मैंने, पहला पेपर दे दिया ऐसे का जी। तो इसके बाद आई वॉज सेटिस्फाइड। अच्छा, आप सेटिस्फाइड? इंशाल्लाह दिस टाइम आई विल क्वालिफाई। अगर लक ने कुछ ज़्यादा, अगर कभी कभी होता है कि 5% मैंने कहा ना लक फैक्टर है, ठीक है, अल्लाह ने चाहा, लेकिन मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था। ठीक है, आई वॉज सेटिस्फाइड एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई क्वालिफाइड इन माई लास्ट अटेम्प्ट। माशा। सर, इतने ऑब्स्टेकल्स फेस करके, इतनी हर्डल्स फेस करके, इतने नेगेटिव लोगों को फेस करके, नेगेटिविटीज़ को, लेबलिंग को, इतने प्रेशर को फेस करके, कि आप अभी आपकी फीलिंग क्या है
अभी आप क्या फील कर रहे हैं? अभी आप माशाल्लाह से एक कमर्शियल स्टेट ग्रुप में असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनेशनल लेवल पर आप सर्व करेंगे, तो अब एक आप CSS का पार्ट बन गए हैं, तो अभी आप क्या फील कर रहे हैं? जी, ज़ाहिर है सबसे पहली बात तो इंसान को स्ट्रगल करने के बाद जो चीज़ मिलती है उसकी कदर होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेंस ऑफ अचीवमेंट। अच्छा अब फॉर एग्जांपल आपके पास सब कुछ है, जी आपके पास बेस्ट मेंटर्स आपके पास हो, एयर कंडीशन रूम आपके पास हो, गाड़ी हो, यानी आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल ना हो, फिर आपके सामने कोई चीज़ आ जाती है तो आपको उसकी कदर नहीं होती है। अच्छा कदर है। ठीक है, आप क्या बताए फिर, यानी आपने क्या किया? अच्छा ठीक है, अब बहुत सारे CSS ऑफिसर्स हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, तो लेकिन मुझे अगर पूछते हैं तो मेरी आप इस पर स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्टोरी है। अच्छा मैं कम से कम अपने जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छा जिनके मेरे जैसे मसाइल हों सही। जिनकी लाइफ में, उनको बताने के लिए मेरे पास स्टोरी है। यानी मुझे आसानी से ये कामयाबी नहीं मिली, अच्छा आसानी से ठीक नहीं है? मिली आपको। मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, फेस करना पड़ा तरह तरह के मसाइल, पीयर प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर है, अच्छा दोस्तों के प्रेशर है, रिलेटिव्स के, फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ है, अच्छा ठीक है, फिर मेरे वालिद साहब है ज़ईफ़ है, ठीक है, घर की जिम्मेदारियां हैं, जी जी यानी यानी तहरीक वो एक एस्पेक्ट है, यानी एक CSS का वाकई में जो एग्ज़ाम है हाईली कम्पिटिटिव है, आपने कम्पीट करना है, अच्छा ठीक है, ये एक एस्पेक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे मैदान में आपको मुकाबला करना पड़ता है। अच्छा यानी ये सारी चीज़ों के बाद, ये सारे स्ट्रगल्स के बाद जब आपको कामयाबी मिलती है तो आपका जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो बहुत ही हाई होता है, आपकी सेल्फ इस्टीम, माशाल्लाह, ठीक है, बिल्कुल आप सही। अपनी नज़रों में नो डाउट आप अपनी नज़रों में ऊंचा हो जाता है। जबरदस्त, ये मैं जबरदस्त। बार बार कहता हूँ, अगर जो इंसान खुद की नज़र में ऊंचा हो जी जी तो फिर वो माशरे की नज़र में भी ऊंचा होता है, अच्छा ठीक है। तो जिसकी सेल्फ इस्टीम को अगर ठेस पहुंचे जी जी तो ज़्यादातर मुमकिन है, ठीक है, वो फिर लाइफ में आगे ना जा सके, ओह ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट वो मेरा बहुत ही हाई था, एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम स्टिल वेरी ब्लेस्ड कि अल्लाह ने मुझे एक छोटे से गांव से मुझे माशाल्लाह। यहाँ पहुँचाया। जबरदस्त 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 माशाल्लाह। सर ये आप पूरी, जैसे आपने बताया कि इतने ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए और पूरी जर्नी में आप तीसरे टाइम पास हुए, इस CSS की जर्नी को क्रेडिट आप किसको देंगे? जी, सबसे पहला जो क्रेडिट है मैं अपने वालिद साहब को देना चाहूँगा। माशाल्लाह ही इज़ ए रिटायर्ड सोल्जर, हवलदार है वो, माशाल्लाह। ही बिलोंग्स टू दी NLI रेजिमेंट अच्छा एंड ही फोर्ट 65 बैटल एंड 75 बैटल, माशाल्लाह उन्होंने पार्ट किया एंड ही वाज अमंग द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अच्छा तो उनकी लाइफ में भी काफ़ी एडवेंचर है, जी जी ठीक है। इतने कम रिसोर्स होने के बावजूद मुझे कभी उन्होंने ये नहीं कहा बेटा आप जॉब करो, जी जी अब तुमने जिम्मेदारी संभालनी है, अच्छा ठीक है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कभी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कभी मुझे नहीं। यही कहा कि जी। बेटा तुम जो कहो अच्छा जो आई विल स्टैंड बाय यू, अच्छा ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा मुझे, मेरे पास जो ज़मीनें हैं, जो ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है, ज़रूरत पड़ी तो ये भी भेजूंगा। अच्छा उन्होंने ये भी उन्होंने support मुझे किया, माशाल्लाह। उनका ये जुमला, जी जी दैट वाज द मोटिवेशन फैक्टर बिहाइंड माय अच्छा। सक्सेस, सही सही ठीक है। मुझे खुद पता है कि ऐसे ऐसे वालिदैन भी है, ठीक है, नहीं जी। वो देखिए जिम्मेदारी, जब आप जिम्मेदारी आ जाती है तो कहते हैं भाई बेटा आप जॉब करो, बिल्कुल ठीक सही है, कह रहे हैं आप। फिर करना पड़ता है, करना ठीक है। पड़ता है। मुझे कभी उन्होंने फोर्स नहीं कभी किया, भी फोर्स नहीं किया। कभी फोर्स नहीं किया। उन्होंने पूरी मेरे जर्नी, CSS जर्नी में, खासकर मैं जब स्कर्दू में था, मेरे साथ आके बैठते थे और मुझे मोटिवेट करते थे, अच्छा बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत इफ़ यू इवन फेल द टेस्ट, मुझे कोई परवाह नहीं, तुमने स्ट्रगल किया है, मुझे रिजल्ट की कोई परवाह नहीं है। नहीं, रिजल्ट की कोई दिस परवाह नहीं। सेंटेंस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन फैक्टर बिहाइंड माय सक्सेस। तो इसके बाद ज़ाहिर है मेरी अम्मी, अच्छा। आंटी वो पढ़ी लिखी नहीं है, जी। ठीक है, उन्होंने उनका बहुत ही, उनकी दुआएं मेरे साथ है, जो माँ की दुआएं जब तक आपके साथ ना हो आप कभी कामयाब नहीं होंगे, बिल्कुल सही है, no doubt, उनकी दुआ, no doubt। ठीक है। फिर मेरी छोटी बहन है, मेरा छोटी बहन, ठीक है, वो जब मेरे पास आ जाती थी और कहती थी कि भैया आप ज़रूर कामयाब होंगे, तो माशाल्लाह। मुझे ख्याल आता था तो कितना अच्छा लगेगा जब मैं इंशाल्लाह पास हो जाऊंगा, मैं CSS क्वालिफाई कर दूंगा, जब मेरी तनख्वाह स्टार्ट हो जाएगी तो मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट दे दूंगा, माशाल्लाह, उनको मैं जबरदस्त। पैसे भेजूंगा। यस को ये लाइफ में जब आप कामयाब होते हैं तो आपकी कामयाबी के साथ बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े होते हैं, जी। बहुत सारों की कामयाबी जुड़ी होती है। है। तो
जितना आपके साथ आपकी कामयाबी से दूसरे खुश होंगे, आप कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही जो आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। Yes. माशाल्लाह से योर ड्रीम कैम ट्रू। तो सर लास्टली कि आप ने इतने ऑब्स्टिकल्स फेस किए, आप कराची से स्कर्दू गए, माइनस में टेम्परेचर फेस किया, सुबह को उठ के फिर सुबह को इतनी सर्दी में माइनस के टेम्परेचर में उठ के जाना, फिर शाम को वापस आना, लेकिन इवन दो फेसिंग दोज ऑब्स्टिकल्स, इवन दो लिविंग इन द रूरल एरिया ऑफ स्कर्दू, आप क्या मैसेज देंगे कि जैसे आपने तैयारी की कि विदाउट एनी अकेडमी, विदाउट एनी मेंटर, आपने खुद अपनी तैयारी की, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो बलूचिस्तान में तैयारी कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ में, जो अंदरूनी सिंध में तैयारी कर रहे हैं, अंदरूनी पंजाब में तैयारी कर रहे हैं, अंदरूनी KPK में और कुछ एरियाज़ रूरल एरियाज़ में, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज दे डू नॉट हैव एनी फैसिलिटी, they do not have any resources to go to any teacher. So what is your message to them? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मैं बार बार अपने दोस्तों को कहा करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि कभी अपनी कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना। अच्छा। डोंट एवर लेट योर वीकनेसेस डोमिनेट योर पर्सनैलिटी। अच्छा। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी का वेट ना करें। समटाइम्स यू विल हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अपॉर्चुनिटी। तो फिर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर कैसे, अच्छा, ये कैसे फेस करें? जी। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सक्सेस। जी। यानी आप कामयाबी के बारे में सोचना शुरू करें। जी। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सक्सेस, जी। व्हाट हैपेंस, यू विल स्टार्ट बिलीविंग। बिलीविंग। यानी आप पहले सोचे, जी। आप मैदान में उतर रहे और फेल होने के लिए ही और हारने जी। के लिए मैदान में उतरे, जी। तो फिर आप हार के ही आएंगे। हार के ही आएंगे। आप मैदान में उतरे तो फिर जीतने के लिए उतरे। जीतने के लिए उतरे। ठीक है, तो फिर जीत आपका मुकद्दर बनेगी। बिल्कुल सही ठीक कह है, रहे हैं। तो पहला जो उसूल है कामयाबी का, जी। मैं कहता हूँ खासकर उन लोगों से जो इंतहाई बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, जी। अंदरूनी पंजाब, अंदरूनी सिंध, इन इलाकों से बिलोंग करते हैं, उनसे मैं कहता हूँ, उनको यही मैं नसीहत करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल start thinking of success. When you start thinking of success, you will start believing. You believing, yes, believing. When you start believing in success, Very good. then you will start acting. Okay. यानी मैंने एक्शन को तीसरा नंबर पर रखा। अच्छा, एक्शन को तीसरा। यानी पहले आप सोचना शुरू करें, जी। अपनी थॉट प्रोसेस को, जी। ठीक है, अपनी सोच को मुस्बत रखें। अच्छा। मैं अक्सर एक एनालॉजी यहाँ पे कायम करता हूँ कि एक इंतहाई अच्छी खूबसूरत गाड़ी आपके पास है, जी। ठीक है, लेकिन उस गाड़ी का ड्राइवर है वो ख़राब हो, जी। वो स्किल्ड ड्राइवर ना हो, जी। जी। तो फिर कार एक्सीडेंट हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह हमारी लाइफ की मिसाल भी एक गाड़ी की तरह है। जी। हमारी लाइफ को चलाने वाला हम जो ड्राइवर है वो हमारी फिलॉसफी है। बस। यानी व्हाट सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी टुवर्ड्स लाइफ यू पोजेस, आपकी लाइफ के पीछे फिलॉसफी क्या है, लाइफ के हवाले से आपका नज़रिया क्या है। जी। ठीक है, जी। आप मुस्बत सोचें। अच्छा, ठीक है? पॉजिटिव सोच। आप पॉजिटिव लोगों में फिर जी। लोगों के साथ रहें, जी। उनकी सोहबत में आप जी। रहें। कामयाब लोग हमेशा आपके साथ कामयाबी की बातें शेयर करेंगे। बिल्कुल सही। नेगेटिव लोगों के साथ आप रहेंगे, जी। जी। ठीक है, वो अपने साथ साथ आपको भी नेगेटिव बनाएंगे। सही कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो अपनी लाइफ से ज़्यादा आपकी लाइफ के हवाले से फिक्रमंद होंगे। ठीक है, ये नहीं होगा, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो 3 पॉइंट्स याद रखें, थिंक ऑफ सक्सेस, बिलीव इन सक्सेस, then you will start acting. Acting on success. ठीक है, Yes. जब मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा यार मैं जॉब भी कर रहा हूँ। जब कराची में था तो फिर जॉब के साथ तैयारी नहीं होगी, फिर मैं स्कर्दू, मैंने जब फैसला किया मैं स्कर्दू जाऊँगा, बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया। तो लोग तो CSS की तैयारी करने के लिए कराची जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, तुम तो स्कर्दू जा रहे हो, क्या है ये? ठीक है, स्कर्दू में तो कोई रिसोर्स नहीं है। तो मैंने इन वीकनेसेस को लेके मैं परेशान नहीं हुआ। ठीक है, मैंने कामयाबी के बारे में सोचना शुरू किया। जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था उस वक्त से मैंने सोचना शुरू किया था। ठीक है, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट डीमोटिवेटेड। ठीक है, इवन आई फेस्ड फेलियर टाइम एंड अगेन। अच्छा। ठीक है, डिस्पाइट ऑल दीज फेलियर्स, ठीक है, मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ। डीमोटिवेट। ठीक है, तो अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना ले। ठीक है, अपनी जो अच्छे लोगों की सोहबत में रहे, ठीक है, अपनी सोच को मुस्बत बनाए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मुझे ऑब्स्टेकल पे एक बात याद आई कि ब्राज़ील की एक डॉक्यूमेंट्री थी, मैं देख रहा था, तो
एक बार्बर के दोनों हाथ कटे हुए थे, यहाँ से और यहाँ से, किसी काम में मशीन पे जैसे। तो वो बार्बर जो था उसके हाथ में ये यहाँ पर मशीन थी, तो वैसे उसको बना रहा था। तो काफ़ी मशहूर है, मतलब आपको यूट्यूब पे भी उसकी डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। तो उससे पूछा गया कि यार कैसे कर रहे हो, तो उसने पहले उसने आंसर ये दिया कि वी पुट ऑब्स्टिकल्स अगेंस्ट आवर ओन सेल्फ। बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग मुस्बत सोचेंगे तो एक्शन भी उनको मुस्बत मिलेगा। सो इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस विथ यू। होपफुली कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आपके एक्सपीरियंस से सीखेंगे, आपकी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, even though living in the backward areas like Skurdu, but in Balochistan, in KPK, in Sindh, they will follow your strategy. And so it was so nice of you to you here. So thank you sir. Thank you so much, Alayar Khan. Thank It you. was really an honor for me. Thank you. Thank you so much. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.